Our body is made up of many organs. But what are these organs made up of? The answer for this question is our today's topic. That is the cell, which is the structural and functional unit in our life. Before moving towards the topic, let us understand some of the internal organs present in human body. This is brain, lungs, liver, intestines, bladder, kidney, stomach, heart, etc. are the organs present inside our body, and there are many organs present outside our body. So, what are these organs made up of? This is the important question. But all these organs are made up of cell. So basically अब तक हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी बहुत सारी ऑर्गन्स से बनी हुई है. ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल. बहुत अलग अलग सेल से हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं. ऑर्गन्स भी अलग अलग वे में आगे क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे उनके नंबर, उनकी साइज और उनके शेप से. जैसे अभी नंबर में यूनि एंड मल्टी सेल्यूलर, साइज में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, एंड शेप में एज पर द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो भी शेप है उसके अकॉर्डिंगली वो क्लासिफाई किए जाते हैं. तो अभी यही हम डिटेल में देखेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर. सो फर्स्ट इज एज यूनिसेल्युलर. Unicellular are the organisms which are single cell. Uni मतलब one, cellular मतलब cell, means one cell organisms मतलब जीव जंतु. One cell organisms. अभी उसमें आते हैं amoeba, yeast, bacteria and euglena, paramecium. 5 examples which will help you to write an exam. ये 5 examples आप एग्जाम में लिख सकते हो. Now next is multicellular organisms. Multi मतलब many, cellular cell, organisms जीव जंतु means many cell organisms. Now let us see the proper definition of unicellular as well as multicellular organisms. Unicellular organisms. The single-celled organisms are known as unicellular organism. Single cell से जो organisms बनते हैं, the organisms made up of one single cell are known as unicellular organisms. Basically, all their functions like digestion, respiration, every function is done by this single cell. एक single cell उनके body में सारे functions perform करता है. Hence, उन्हें यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसा कहते हैं. नाउ लाइक अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना. 3 एग्जांपल्स. बैक्टीरिया, यीस्ट. 5 एग्जांपल्स. एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद 5 और 3 एग्जांपल्स. सो यू कैन रेफर दिस. नेक्स्ट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. Many celled organisms. तो डेफिनेशन क्या आएगी? The organisms having many cells are called multicellular organisms. ऐसे organisms जो many cells, number of cells, ज्यादा number of cells से बनते हैं, उन्हें हम multicellular organisms कहते हैं. अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल वर्क करता है, इसके लिए multicellular, many celled. So example multicellular का humans, frog, cats, means सारे animals, mostly all the animals are multicellular organisms. You can refer this picture for your examples. Now classification on the basis of size. Size में we remember smallest and largest. ये दो बहुत ही बेसिक वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं व्हेन वी हियर द टर्म साइज.
So in the cell also there are two types of cell, smallest and largest, on the basis of size. So this is mycoplasm, also known as PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये सबसे छोटा सेल होता है. द मीन्स द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ. नेक्स्ट ये है ऑस्ट्रिच एग, जो कि लार्जेस्ट सेल है. स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट. There are some units to measure the size of cell. जैसे we measure the distance, the weight, like kilometer, meter, liter. There are many units to measure. Similarly, there is a unit to measure the size of cell. Let us see what is written further. हमने जैसे डिस्कस किया कि साइज, ये नाम टर्म सुन के हमें स्मॉल और लार्ज याद आना चाहिए. स्मॉल में माइकोप्लाज्म, ऑल्सो पीपीएलओ, ये भी ध्यान में रखना है और उसका फुल फॉर्म भी लर्न करना है. लार्ज में ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल होता है, जो माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट 0.1 माइक्रोन एंड ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट 170 सेंटीमीटर. ये यूनिट्स हमें याद रखने हैं. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. Classification on the basis of shell shape. Now, according to shape of the cell, cell का जो भी shape है, उसके accordingly different way में as a shape वो classify किए जाते हैं. जैसे squamous, cuboidal, columnar. Now ये क्यों होता है? This is because उसके जो cell की tissue में जो location और function होता है, it is due to the function and location of the cell in the tissue. इसके कारण सेल का शेप वेरी होता है. These are some of the examples of different shapes in cells. Now हमें पता है कि the organs in our body सेल से बने होते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं हार्ट का. हार्ट जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ आते हैं तो हार्ट का टिश्यू बनता है. जब बहुत सारे हार्ट के टिश्यू एक साथ आते हैं तो हार्ट मीन्स ऑर्गन बन जाता है, दैट इज हार्ट, विच फर्दर फंक्शंस इन विच फर्दर पंप्स ब्लड. वो उसका फंक्शन है. बट द मेन इंग्रेडिएंट एज इन अवर रेसिपी और द मेन पार्ट ये सेल है. सेल्स जब एक साथ आते हैं तब फर्दर प्रोसीजर से हार्ट का ऑर्गन हो जाता है. It's not only for heart but सभी organs के लिए यही होता है. Now ये सेल का हम typical structure study करते हैं. So this is a typical cell. अभी सेल बहुत delicate होता है. To protect that cell, ये एक layer सी covering सी होती है, that is cell membrane. Now cell membrane के inside एक ऐसा लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. नाउअडेज वी ऑल आर एबल टू यूज कंप्यूटर. सबको कंप्यूटर चलाना आता है एंड हमें पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू. सो सिमिलरली सेल का सीपीयू या फिर सेल का ब्रेन न्यूक्लियस होता है, जो मास्टर सारा कंट्रोल करता है सेल में सारी एक्टिविटीज. ना यहाँ पे जो दो नाम दिए, माइटोकॉन्ड्रियन, वैक्यूल, वो एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स. नाउ ऑल दी स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी अलग अलग पार्ट्स देखते हैं सेल के. सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग देखी थी, that is cell membrane. Next comes cytoplasm, that liquid, जो एक लिक्विड होता है सेल के अंदर, that is known as cytoplasm. न्यूक्लियस,
CPU of the cell or the control house, powerhouse or control house of the cell. सेल ऑर्गेनल्स मतलब हमारे आवर बॉडी कैसे अलग अलग ऑर्गन से बन के बॉडी बनती है, वैसे सेल भी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जब एक साथ आते हैं तो सेल बनता है. सो लेट अस स्टडी फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट इज रिटन? द आउटर रिजिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम, जैसे वी हैव अ निकनेम, तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Now further a point is given. It gives a rigid covering to the cell. As I told कि cells बहुत delicate होते हैं. So to protect them, it gives a rigid. Rigid मतलब कि एकदम strong, ताकतवर, ऐसे covering देता है वो cell को. Now animal cells are inside means हमारा ये जो outer structure है उसके अंदर cells present है. But the plant cells उन्हें सारे जो कैलामिटीज है, वेदर्स है, उन सबको फेस करना पड़ता है. इसीलिए दे हैव प्लांट सेल्स हैव अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नोन एज सेल वॉल. मींस सेल मेम्ब्रेन के बाहर दे हैव अ सेल वॉल. सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. ये डिटेल स्टडी हमें इस साल नहीं है, बट जस्ट फॉर अ इंफॉर्मेशन. दिस Then this is the cell wall which is giving a extra protection to this cell. ये सारा जो अंदर का न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स है उसे प्रोटेक्शन ये सेल वॉल दे रहा है. मीन्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स. इसीलिए जो एनिमल सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं एंड प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव अ डिफाइनाइट शेप. उनका एक फिक्स्ड या फिर डिफाइनाइट शेप होता है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. द जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म. एक ऐसे लिक्विड जेल लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. मीन्स जो वो जेल है वो भी किसी से तो बना है, दैट इज फैट्स, प्रोटीन्स और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर. इट ऑल्सो होल्ड्स अ स्पेशल लिविंग जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ही मीन्स प्रोटोप्लाज्म होल्ड्स साइटोप्लाज्म. दिस इज अ जेल and this is a living gel-like material in a cell. Means we only have detail about cytoplasm. We just have to remember that it also holds a structure, living gel-like structure known as protoplasm. So this yellow part is the cytoplasm. Now nucleus. Nucleus is the control center in a cell. Means nucleus एक CPU है हमारे सेल का. It controls all the cellular activities. सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, वैसे ही सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है वो न्यूक्लियस से कंट्रोल की जाती है. इट हैज न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है. इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन which condenses to form chromosomes. जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होते हैं मींस कूल डाउन होते हैं, वो क्रोमोसोम नाम का मटेरियल फॉर्म होते हैं. दे फॉर्म एज क्रोमोसोम्स एंड दीस ये जो क्रोमोसोम्स है वो जो जीन्स होता है ना कि देयर इज अ चाइल्ड which has some of the
अभी मीन्स वो थोड़ा मम्मी जैसे दिखता है, पापा जैसे दिखता है. दिस इज ड्यू टू द genes. And how are these genes inherited? Inherited means passed from one generation to other. तो ये पास ऑन किसके वजह से होता है? क्रोमोसोम्स की वजह से. इसीलिए we say that the daughter or the son looks like his mother or father. So ये हमारा न्यूक्लियस है. This pink part is nucleoplasm. The dots or that patches present in nucleoplasm are the chromatin fibers. ये मटेरियल और ये फाइबर्स कंडेंस होके क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं. We only have nucleus, nucleoplasm and chromatin fibers. These other things about the nucleus we will study in further classes. Now the main part comes the cell organelles. So now we will study them in detail. पहला है plastids. Now this is the cell organelle जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में पूरी तरह एब्सेंट होता है, कुछ लेना देना नहीं है प्लांट एनिमल सेल से, ओनली प्लांट सेल में. माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना घर नहीं चलता, मींस पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वैसे ही ये पावर हाउस बोला जाता है सेल का. व्हाई विल स्टडी इन डिटेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now it helps in synthesis of proteins, fats and different materials. Then comes Golgi complex. जैसे कुरियर पोस्ट ऑफिस से घर तक आता है प्रोसेस और पैक होके. सिमिलरली सेल के अंदर जो मटेरियल्स है उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास होता है. नेक्स्ट इज वैक्यूल. वैक्यूल मीन्स वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोरेज ऑर्गन की तरह होता है. Cilia and flagell. Like we have legs to move, run and locomote, वैसे ही सेल्स को या फिर सब ऑर्गेनिजम्स को cilia and flagella होता है. Now let us study these organelles in detail. First is plastids. They are the cell organelles present only in plants. ये सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो आगे भी बाइफर्केट किए जाते हैं. Now from all this we only have three: leucoplast, chromoplast, chloroplast. इस साल हम ये तीन पढ़ेंगे. So now let us see about chloroplast. अर्लियर क्लासेस में हमने एक लीव्स के पास जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके बारे में सुना ही होगा. क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर देता है लीव्स को. सो दिस प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, plastids associated with green color of leaves are called chloroplasts. It helps in photosynthesis. Means leaves का जो green color होता है that is due to ये जो chlorophyll है उसके अंदर ये plastid present होता है which is chloroplast. chloroplast के कारण leaves को green color आता है. ये याद रखना है कि chloroplast सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के साथ एसोसिएटेड है. ग्रीन कलर के साथ एसोसिएटेड है मींस वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर देता है. ये क्लोरोप्लास्ट है मींस उसका कलर ही ग्रीन है, दैट्स व्हाई इट गिव्स ग्रीन कलर. नाउ क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन कलर हो गया बट फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, इनको जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनका क्या? सो द प्लास्टिड्स जो दूसरे कलर्स देते हैं उन्हें बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट. मींस प्लास्टिड्स associated with different colors other than green.
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन को छोड़ के सारे कलर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। मीन्स जो एप्पल है, एप्पल हैज अ रेड कलर, तो वो रेड कलर, ब्रांच है दे हैव अ ब्राउन कलर, फ्लावर्स को अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे पिंक, येलो एक्सेट्रा। तो उन्हें कलर किसकी वजह से मिलता है? उन्हें कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। लेट अस सी कलरफुल स्ट्रक्चर which gives different colors other than green। इसमें इसका और ग्रीन का दूर दूर तक रिश्ता नहीं। ग्रीन का रिश्ता क्लोरोप्लास्ट के साथ, दूसरे कलर्स का रिश्ता क्रोमोप्लास्ट के साथ। ग्रीन हो गया, रेनबो कलर, सारे कलर्स हो गए। नाउ ल्यूकोप्लास्ट भी सब कलर्स हो गए, पर जो कलरलेस, जो कलर्स ही नहीं देता, some colorless plastids which acts as a storage organ in plants which help to store starch, oils and proteins। means ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो दूसरे कलर तो नहीं देता है बट एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, जो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब स्टोर करते हैं। So this is basically a leucoplast which stores starch, oils and proteins. Now let us learn about mitochondria. They are present in plastids सिर्फ plants में present, mitochondria plants as well as animals. They are present both in plants and animals. It is also known as powerhouse of the cell. It helps in generation of energy and cellular respiration. स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आती है, वैसे ही इसे हम पावर हाउस, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। Why? क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है। घर में लाइट्स और वो सब इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से चलते हैं, राइट? तो वैसे ही सेल के अंदर जो एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, इसके लिए पावर हाउस। देन जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है दैट इज आल्सो डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे zigzag, ऐसे कर्व टाइप स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a tubular network of membranes found within cytoplasm. It is further bifurcated as rough and smooth. Means एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब जैसा नेटवर्क होता है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ट्यूब के लेयर 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 ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे भी दो टाइप्स में बाइफरकेट किया जाता है, रफ और स्मूथ। First let us see endoplasmic reticulum का पिक्चर। So ऐसे ये न्यूक्लियस है एंड ये ऐसे ट्यूब 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 की तरह ये न्यूक्लियस को ऐसे पूरा सराउंड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सी। रफ ये वर्ड सुन के what things come in your mind? ऐसे बहुत रफ स्ट्रक्चर होगा, जैसे सॉफ्ट स्मूथ, ऐसे थोड़ा रफ स्ट्रक्चर, राइट? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म ER, रफ का RER। It is because it has a studded appearance due to ribosomes present on it. राइबोसोम्स एक बॉल और सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर जैसे ऐसे स्टडेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसके लिए वो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नाउ ड्यू टू ये राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन
प्रोटीन सिंथेसिस। अब these ribosomes सिर्फ RER पर ही नहीं बट साइटोप्लाज्म में भी बहुत बार प्रेजेंट होते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे न्यूक्लियस को सराउंड किया है एंड दिस येलो एंड गोल्डनिश टाइप ऑफ जो बॉल्स दिख रहे हैं ना, these are ribosomes. Now let us move forward. Now smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic, smooth word सुन के what do you feel? एकदम ऐसे soft, smooth, ऐसे एकदम glide हो जाए वैसा ना. So जैसे RER, SER, smooth endoplasmic reticulum. It is also called as SER. It is because it has a smooth appearance due to absence of ribosomes. It helps in fat synthesis or synthesis of fats. Rough क्यों थे? Right, because of presence of ribosomes. Smooth क्यों है? Absence of ribosomes. Ribosomes ने present attendance present लगाई तो rough, absent attendance लगाई तो smooth. Now rough प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ फैट सिंथेसिस, ये जो 2-3 की पॉइंट्स है दैट यू हैव टू रिमेम्बर, जो जनरली ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। नाउ ये रफ का पार्ट है जिसमें राइबोसोम्स है, दिस इज स्मूथ वन जिसमें राइबोसोम्स का आर भी नहीं है। Now next comes Golgi complex. They are also called as Golgi bodies or Golgi apparatus. Generally competitive exams में बहुत बार हम लोग complex bodies या apparatus कोई एक नाम लर्न करके जाते हैं। If we are learning Golgi complex और क्वेश्चन में पूछा जाता है Golgi complex are known as Golgi bodies are known as dash, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए don't get confused. Golgi complex is only known as bodies or apparatus. They are sac-like structures stacked one above the other. They help in processing and packaging of the materials in a cell. जैसे पार्सल पोस्ट ऑफिस से या फिर Amazon, Flipkart जो भी मंगाते हैं वो प्रोसेस और पैक होके आता है। सिमिलरली सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी पैक करके प्रोसेस और पैक गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक ऐसे सही है सैक। नाउ ये ऐसे सीधा इसके लिए बट नाउ दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ये एक, ये दो, तीन से एक के ऊपर एक स्टार्ट करता है। नेक्स्ट कम्स वैक्यूम. It acts as a storage organ. It stores waste material and excess amount of water. इसका ल्यूकोप्लास्ट का कंपैरिजन है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, प्रोटीन्स और ऑयल्स, ये वेस्ट मटेरियल्स और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। डिफरेंस है it is generally in large plants and either absent or is very small in animal cell. प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, बट एनिमल सेल्स एक तो इट इज वेरी स्मॉल और एब्सेंट। सो एक स्टोरेज ऑर्गन जो वेस्ट मटेरियल्स एंड एक्सेस वाटर स्टोर करता है, विच इज लार्ज इन प्लांट्स एंड स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल्स। This is a vacuole. से इसमें इसका सेल में जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे जाता है, एक्सेस वाटर प्रोड्यूस होता है वो भी यहाँ पे जाता है। Cilia and flagella. Now जैसे we have legs so we can walk, we can run. Similarly, some animals or organisms we can say have extensions of their cell membrane.
which helps in locomotion and collection of food. Cilia are numerous while flagellum is single. Now, motion means movement and locomotion में difference है. If I am simply doing this, I am moving, but when I am walking, I am locomoting. So when I walk, I locomote, but when I simply turn around, I move. तो ये लोकोमोशन में मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए हेल्प करता है. एंड कलेक्शन ऑफ फूड. नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हाथ तो नहीं होते, सो दीस सीलिया एंड फ्लैजेला उन्हें फूड कलेक्ट करने में मदद करता है एंड लोकोमोट करने के लिए हेल्प करता है. सीलिया बहुत होते हैं, फ्लैजेलम सिंगल होता है. सी न्यूमेरस सीलिया, सिंगल फ्लैजेलम. सीलिया बहुत सारे होते हैं, फ्लैजेलम सिंगल होता है. Organization of the body of multicellular organism. Unicellular का organization मतलब one cell, because it is a single celled organism. But multicellular organisms में particular organization होता है. Like cell. हार्ट का एग्जाम्पल लिया था. हार्ट बहुत सारे सेल्स आए, हार्ट का एक टिश्यू बना. बहुत सारे हार्ट के टिश्यूज है, हार्ट का हार्ट ऑर्गन बना. सिमिलरली जब बहुत सारे सेल्स आए, तो लेट्स टेक डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल. बहुत सारे सेल्स आए तो टिश्यू बना. बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आए तो ऑर्गन बना. बहुत सारे ऑर्गन आए, ऑर्गन सिस्टम बना. सेल, टिश्यू, तो लेट्स टेक स्टमक का सेल, स्टमक के टिश्यूज, ऑर्गन स्टमक बना. जब स्टमक, लीवर, स्टमक, एसोफेगस, माउथ के सब ऑर्गन्स एक साथ आए तो ऑर्गन सिस्टम में बना. और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, इंटीग्यूमेंट्री, ये सारे सिस्टम जब एक साथ आए तो बना ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो नाउ लेट अस रिपीट दिस वंस मोर. Many cells to form tissue, many tissues to form organ, many organs to form organ system, many organ system form an organisms. So this was all about the cell and related things. For further more such interesting science, maths and all other subject references, please subscribe and like the video. For today, thank you and have a great day.